अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना काबीना का रेवंत रेड्डी की सदारत में हुआ इजलास, पसमानदा तबका तहफ़्फ़ुज़ात, असम्बली का खुसूसी सेशन और दीगर अमूर पर बातचीत। वरंगल खम्मम नलगोंडा से टीचर एमएलसी पर कामयाब उम्मीदवार श्रीपाल ने रेवंत रेड्डी से की मुलाकात, असातिज़ा के मसाइल हल करने का दिलाया यकीन। हम तेलंगाना में डबल इंजन सरकार लाने के लिए करेंगे काम, एमएलसी सीटों पर कामयाबी से पुरजोश बीजेपी लीडर किशन रेड्डी का दावा। तालीम, मुलाजिमत और मुकामी इदारों के इलेक्शन में पसमानदा तबकात बीसीस के लिए रिजर्वेशन बढ़ाने 3 मुख्तलिफ बिल लाए जाएं, रेवंत रेड्डी हुकूमत से बीआरएस एमएलसी कविता ने किया मुतालबा। 90 दिनों के अंदर 25 करोड़ वापस करो या जेल जाओ, हीरा ग्रुप की नौहरा शेख को सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त अल्टीमेटम। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनी तंजीम हमास को दी आखिरी वार्निंग, कहा गजा में मौजूद बाकी तमाम इरगमालियों को रिहा किया जाए वरना हमास के खात्मे के लिए इसराइल की हर मुमकिन करेंगे मदद। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना काबीना का रेवंत रेड्डी की सदारत में इजलास हुआ। समझा जा रहा है कि पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात, असम्बली के खुसूसी सेशन और दीगर अमूर पर तफसीली बातचीत हुई है। हुकूमत रिजर्वेशन के सिलसिले में बिलों को पेश करने के लिए असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करने वाली है ताकि बीसीस को तालीम और रोज़गार में दरकार तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा सकें। दूसरी जानिब बीआरएस एमएलसी कविता ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वह तालीमी मुलाजिमत और मुकामी इदारों के इलेक्शन में पसमानदा तबकात बीसीस के लिए रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए 3 मुख्तलिफ बिल पेश करें। तेलंगाना हुकूमत तस्लीम करती है कि बीसीस रियासत की आबादी का 46% है, इसलिए 3 बिलों को पेश किया जाए। तालीम के लिए एक, मुलाजिमत के लिए एक और एक मुकामी इदारों में सियासी रिजर्वेशन में इजाफे के लिए बिल लाया जाए। कविता ने कहा कि अगरचे तालीम और मुलाजिमत के रिजर्वेशन में 46% देने में कानूनी पेचीदगी हो सकती है, लेकिन मुकामी इदारों में रिजर्वेशन मुकम्मल तौर पर रियासत के दायरे इख्तियार में है। Demand for OBC reservation and 46% according to the government is the population of OBCs in this state. Of course, there are many concerns on the population, but if for a minute we agree with that figure, we want the government to introduce 3 different bills in the assembly. Today there is a cabinet meeting discussion happening, so my demand to the government of Telangana is please introduce 3 different bills, one for education, one for employment and one for political reservation for the OBCs, because local body reservation completely comes under state control. And if this government is serious and if this government wants to live up to what Mr. Rahul Gandhi ji explains across the nation, he holds a constitution and tells people I am going to take an X-ray of this country and give reservation to BCs. If it is true and if they want to walk the talk, then I demand this government introduce a separate bill for local body reservation. It is a state subject, there will not be any legal complications. For education and employment, there might be some legal complications, so I demand the government introduce another 2 different bills, both in education and employment, but with a 46% reservation. Well, see, this election is a direct reflection of what we were propagating in the last 1.5 years. No party gave a ticket to a BC candidate. Both parties gave ticket to upper caste. BRS party did not contest the election, so the total equation and the ecosystem changed. And then when people like us said BC should get united and vote, the third candidate, a BC candidate, emerged and gave very, very stiff competition to both these national parties. So if either one of the national parties would have given a ticket to the BC, it would have been justified. Or if they would have helped these candidates, it would have been good, but it did not. So this election is not a true reflection of democracy is what I would say. Well, it's very unfortunate. I heard about that news and I truly demand that the Telangana government and I request the central government to quickly process and get the body home, because parents here must be suffering. My prayers are with the family. My prayers are with the students who are there. They must be frightened and afraid. Please stay brave. Indian Embassy, Indian government, I'm sure will come to your rescue. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने श्रीपाल रेड्डी से मुलाकात की है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। वरंगल खम्मम नलगोंडा से टीचर्स एमएलसी कामयाब उम्मीदवार श्रीपाल ने एक वफ्द के हमरा रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। श्रीपाल ने यकीन दिलाया कि वो टीचर्स के मसाइल हल करने के सिलसिले में तमाम तर ज़रूरी इक़दाम करेंगे। बीजेपी लीडर किशन रेड्डी ने दावा किया कि आवाम पार्टी को पसंद कर रही है। एमएलसी इलेक्शन में कामयाबी इसका सबूत है। उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना में डबल इंजन सरकार लाने के लिए कोशिशों का सिलसिला जारी रखेंगे। आइए देखते हैं किशन रेड्डी के तासुरात। आज तेलंगाना के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव था। बहुत बड़ा, लगभग 60% 70% एरियाज में ये चुनाव हुआ है। इस चुनाव में हर गांव में रहने वाले टीचर्स हो,
हम गांव में रहने वाले ग्रेजुएट्स हो, जो पढ़े लिखे लोग हो, बुद्धिजीवी हो, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। ये गांव में इन्फ्लुएंसर के नाते कहते हैं। जैसे इन्फ्लुएंसर सी का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलना, भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलना, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलना, ये तेलंगाना के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत प्रमुख रूप से एक सक्सेस है। आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लास्ट विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जैसा 37% वोट बीजेपी को मिला, लगभग 77 लाख वोट्स भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। इस चुनाव में भी अच्छे सफल मिला है। आने वाले दिन में तेलंगाना का राजनीति कैसा होगा, तेलंगाना जनता भारतीय जनता पार्टी को कैसा आशीर्वाद देंगे, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी सरकार कैसा आएंगे, इसका एक रास्ता फिर एक बात तेलंगाना जनता तय किया है। इसी रास्ते में हम और मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिन में मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना में डबल इंजन सरकार लाने के लिए पूरा कमिटमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मिलकर तेलंगाना में काम करके तेलंगाना में एक अच्छे तेलंगाना जनता जो चाहते हैं, तेलंगाना जनता का जो आकांक्षा है, उस आकांक्षा के साथ काम करने वाले सरकार आएंगे। बीजेपी के एमएलसी इलेक्शन में कामयाबी के हवाले से रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने तंजिया रिमार्क किया। उन्होंने कहा कि जीतने वाले बीजेपी उम्मीदवार ने इतने वोट भी जीते नहीं जितने वोट मुस्तरद किए जा चुके हैं। आइए देखते हैं पूनम प्रभाकर का ये बयान। తెల్ల నోట్లతో అంతా కూడా మెజార్టీ రాలే వీళ్ళకు దాని పెద్ద ఏం చెప్తున్నారు వీళ్ళ సార్ ఇక్కడ ఈ ఎన్నికలను మీరు గ్రౌండ్ లో చూశారు కదా, ఇక్కడ ఏమైనా మిస్టేక్? ఇది 42 నియోజకవర్గాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక గ్రాడ్యుయేట్ ఓటరు. ఇదే మొత్తం కొలమానం కాదు. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలు ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో 2 ఓట్లు కూడా 2000 ఓట్లు కూడా లేవు గ్రాడ్యుయేట్. ఓ నియోజకవర్గంలో కరీంనగర్ లాంటి దగ్గర 30,000 ఉండొచ్చు. 42 నియోజకవర్గాలకు సంబంధించింది కాబట్టి దాంతో పాటు ఈ మాట కూడా ఇస్తున్నా, ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో 2000 ఓట్లు కూడా లేవు. ఓ నియోజకవర్గం కరీంనగర్ లాంటి దగ్గర 35,000 ఉండొచ్చు. 50% కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించే. నేను మళ్ళీ ఏమంటున్నా కూడా అంటున్నా, ఎన్నైనా మేమేం పెద్ద దూరంగా కిలోమీటర్ల గ్యాప్ తోటి ఓడిపోలే. మేము కూడా దగ్గర దాకా ఉంటుంది. ఆ చెల్ల రోడ్లంతా మెజార్టీ కూడా రాలే కదా వాళ్ళకు అంటున్నా. కాబట్టి మేము డెఫినెట్లీ। रियासती वजीर सीतका ने कहा कि कांग्रेस ने वादे करते हुए इख्तियार में आई और अब इन वादों को पूरा करने के सिलसिले में कोशिशें जारी हैं, जिसकी वजह से अवाम कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी से खुश है। सीतका ने बीआरएस और बीजेपी को तनखीदों का निशाना बनाया। కార్యకర్తలందరూ కష్టపడ్డారు, ప్రజలు అభిమానించారు, కాంగ్రెస్ గెలిచింది. కొంతమంది బీజేపీ గొంతుకలై బీఆర్ఎస్ గొంతుకలై మాట్లాడేటోళ్లకు మేము చేసింది ఏది కూడా నచ్చలేదు. బీజేపీని చేయమంటే దేశంలో సాధ్యం కాదని బీజేపీ నాయకులు ఇక్కడ సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతారు. మేము చేసింది మాత్రం అబద్ధమని ఒక దిక్కు బీజేపీ మాట్లాడతారు, వాళ్ళ ఫాలోవర్స్ వివిధ రూపాలలో ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడతారు. కాబట్టి ఏం తప్పునో చెప్పమంటే చెప్పడం లేదు. 50 రోజుల కంటే ఇంకా ఎక్కువ టైం కూడా మొన్న కూడా ఇచ్చినాం కదా. రేపు ఎమ్మెల్సీ మండలి ఉంటాయి కదా, అందులోనే డిస్కస్ చేయమను, లేకుంటే ఎక్కడైనా కూర్చోబెట్టి చెప్పొచ్చు కదా, దాందేముంది. రాహుల్ గాంధీతో పోల్చుకునే అర్హత ఆయనకు లేదు. ఆ రోజు ఇక ఆయన గురించి ఆయన బాగా ఆలోచించుకొని మాట్లాడాలి, ఎక్కువ ఆలోచించుకొని మాట్లాడితే బాగుంటుంది చాలా. రాహుల్ గాంధీ గారిని కోట్ చేసినంటేనే ఆయన గురించి అర్థమైపోయింది. हाइड्रा के कमिश्नर वी रंगनाथ ने आज कहा कि शहर भर की जिलों की तरक्की में कोई रुकावट नहीं होगी और उन्हें कोई मुश्किलात का सामना नहीं है। एवी रंगनाथ ने दीगर अहदेदारों के साथ खाजागुड़ा में चेरुवू तालाब और नेकरामपुर में इब्राहिम बाग झील की बहाली के कामों का शख्सी तौर पर जायजा लिया। हाइड्रा कमिश्नर ने भी कहा कि हुकूमत शहर में झीलों की तरक्की और खूबसूरती के सिलसिले में अव्वलीन तरजीह दे रही है। गीतम यूनिवर्सिटी की जानिब से साबिका हिंदुस्तानी फुटबॉल टीम कप्तान और हैदराबादी शख्सियत शबीर अली को एजाज़ से नवाजा गया। इत्तलात के मुताबिक शबीर अली का ताल्लुक पुराने शहर हैदराबाद से है। तेलंगाना की वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा अपने पालतू कुत्ते की मौत पर ज़ारो क़तार रोते देखी गई। इस पालतू जानवर की मौत ने सुरेखा के बशमूल उनके अरकान ख़ानदान को काफ़ी गमज़दा कर दिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा अपने प्यारे पालतू कुत्ते की मौत पर गम से निढाल हैं और उसकी लाश के सामने ठहर कर आंसू बहा रही है।
अमेरिका में नामालूम अफराद की गोली लगने से तेलंगाना का तालिब इल्म हलाक हो गया। तालिब इल्म जिसकी शराब जिला रंगारेड्डी के केशमपेट के रहने वाले 27 साल जी प्रवीण के तौर पर की गई। आला तालीम के लिए अमेरिका में था। तफसीलात के मुताबिक वो अमेरिका में MS साल दुव्वम की तालीम हासिल कर रहा था। तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए वो एक स्टार होटल में जुज़ वक्ती मुलाजिमत भी करता रहा। प्रवीण के घर के करीब एक साहिली इलाके में नामालूम हमलावर ने फायरिंग कर दी, जिसमें वो हलाक हो गया। इस मौत की इत्तला के साथ ही दोस्तों और खानदान में सदमा देखा गया। పైకి నాకు కాల్ వచ్చింది, వాట్సాప్ కాల్ రిసీవ్ చేసుకోలే. నేను కాల్ రిసీవ్ చేసుకోలే. మార్నింగ్ చూస్తే మిస్డ్ కాల్లో పడింది. మిస్డ్ కాల్ వచ్చిందని చెప్పి మేము వాయిస్ మెసేజ్ పెట్టాము, కాల్ చేసావు కదా మళ్ళీ రిటర్న్ కాల్ చేయమని చెప్తే గంట వరకు ఏం రిప్లై రాలేదు. రాకపోతే బాబు నెంబర్కి కాల్ చేసాము. మేము చేస్తే అక్కడ వేరే వాళ్ళు ఫోన్ ఎత్తుతున్నారు. మాకు ఫోన్ దొరికింది, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కావాలని అడుగుతున్నారు. మాకు డౌట్ వచ్చేసి ఫోన్ కట్ చేసాము. చేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు చేసినా అదే చెప్తున్నారంట. వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఇట్లా అయ్యింది, మీరు ఇక్కడ రావాలని చెప్తే వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళారు. అయితే ఏమైందంటే స్టోర్లో పార్ట్ టైంకి వెళ్ళినప్పుడు స్టోర్లో వచ్చేసి దొంగలు వచ్చేసి రైడ్ చేశారంట. రైడ్ చేసినప్పుడు షూట్లో బుల్లెట్ తగిలి చనిపోయారు. बीजेपी लीडर रामचंद्र राव ने कहा कि अमेरिका में आज भी नस्ली इम्तियाज के वाकयात पेश आ रहे हैं। हिंदुस्तान के बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। ताज़ा वाकया भी इसकी एक मिसाल है, जिसमें हिंदुस्तानी तालिब इल्म की गोली लगने से जान चली गई। उन्होंने इस वाक़े पर दुख और सदमे का इजहार किया। Unfortunate death of a Telangana student who was working as a part-timer in a store in the US is an unfortunate incident, wherein the US government also should try to protect at least the legal migrants who are now staying in US. The incident has shown the racial discrimination still going on in the country of USA, wherein we are trying to avoid the racial discrimination, but unfortunately the racial discrimination is being increased in spite of Indians' contribution to the growth of the US economy. I think the government of USA should take stern steps against such criminals who are trying to attack basically Asians, Indians, and that to Telugu people. This is not an isolated incident. Several incidents have also. शहर हैदराबाद के जुबलीस इलाके के एक रिहायशी पर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से फराहम करदा पीने के पानी को मोटरसाइकिल धोने के लिए इस्तेमाल करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगा। वाटर बोर्ड ने पीने के पानी को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने पर जोर दिया और आवाम से कहा कि वो पानी को गैर ज़रूरी सरगर्मियों में ज़ाय न करें। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम हो रही है और बाज़ इलाकों में मांग में इजाफा हो रहा है। इस दौरान बोर्ड ने खबरदार किया कि पीने के पानी का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ बोर्ड की जानिब से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल शोबे की जानिब से एक अहम कार्रवाई करते हुए शहर हैदराबाद में गलत तरीके से ज़ख़ीरा शुदा टेटानस वैक्सीन और ऑक्सीजन इंजेक्शन जब्त कर ली गई है। सुल्तान बाजार हैदराबाद में श्री नंदनी फार्मा पर छापा मारा गया और भारी मकदार में इंजेक्शंस को जब्त किया गया। इन अद्वियात को गलत दर्ज हरारत में स्टोर रखा गया था, जिससे मरीजों की हिफाजत को खतरा लाक था। एक और छापे में DCA के एहलकारों ने हनमकुंडा में एक बगैर लाइसेंस के हाथे में 80,000 मालियत की गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा शुदा दवाओं को भी जब्त कर लिया है। साउथ जोन टास्क फोर्स और छतरी नाका पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया और एक स्कैम का पर्दाफाश किया है। 4 लोगों को इस सिलसिले में हिरासत में ले लिया गया, जो कि डबल बेडरूम मकान दिलाने का झांसा देकर लोगों को लूटने का काम कर रहे थे। पुलिस हुकाम ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। इलाके में रहने वाला मेकल विजय और सुनील सिंह और 2 आदमी, ये लोग ये जो कॉमन पीपल को जो जरूरत है वो मिडिल क्लास एरिया में रहने वाला वो लोगों को डबल बेडरूम दिलाते बोल के वो लोगों को आस दिला के तकरीबन 200 लोगों से ज्यादा लोगों को ये लोग पैसे वसूल करके वो लोग ज्यादा 2 साल से ये लोग आज करते कल करते बोल के ये लोगों को घुमा रहे। और कभी थोड़े लोग कोई प्रेशर करे तो उसको लेके MRO ऑफिस को जाना, RDO ऑफिस को जाना, कलेक्ट्रेट को जाना, सेक्रेटेरिएट को जाना, जाके हम लोग आपका केस ही परस्यू कर रहे बोल के वो लोगों को यकीन दिलाने के चक्कर में वो लोग ऐसा घुमा रहे थे। तो थोड़े लोग बर्दाश्त नहीं होके ज्यादा टाइट करे तो ये लोग क्या करे,
रबर स्टाम्प्स बनाए आरडीओ का और थोड़ा आरडीओ का और गवर्नमेंट का बना के फेक अलॉटमेंट लेटर्स 200 तक अलॉटमेंट लेटर्स तैयार करके रखे। वो पूरे हम सर्चेस में ये पूरा बरामद कर लिया और 1 लाख कैश भी वो लोगों के पास हमको बरामद हुआ। ये जो मेकला विजया है सेम सिमिलर ऑफेंस में जुबली हिल्स में भी इनके ऊपर एक केस है, ऐसा डबल बेडरूम अलॉट कराते बोल के उन्होंने पहले भी ऐसा चीट करे सो है पब्लिक को। तो वो केस भी है, उसमें कितना विक्टिम्स है, इसमें कितने विक्टिम्स बनते अब तक तो 200 से ज्यादा बोल के अपने को समझ में आ रहा और इससे ज्यादा भी होंगे, बढ़ के भी होंगे डिफरेंट लोकेलिटीज से। वो सबको इन्वेस्टिगेशन में चेतरना का इंस्पेक्टर साहब इन्वेस्टिगेशन में पूरा निकालेंगे। ये जो काम हमारे साउथ जोन टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर राघवेंद्र और एसआईस अंजनेयलु, नरसिम्हलु, मधु एंड शरीदाबाद के अंबरपेट पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर और कमिश्नर पुलिस CV आनंद की मौजूदगी में इस तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने मीडिया से बातचीत भी की। ప్రారంభించడం జరిగింది। పొన్నం ప్రభాకర్ గారు బీసీ వెల్ఫేర్ మరియు ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ గారు, హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారు వారి సమక్షంలో ఇక్కడ ఈ ప్రారంభోత్సవం జరిగింది। కొన్ని రోజుల నుండి వేచి చూస్తున్న ఈ ఇనాగ్రేషన్ ఈ రోజు జరిగినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। మీ అందరికీ తెలుసు ఈ జోన్ DCP ఆఫీస్ చాలా చరిత్ర ఉంది। ముందు ఇక్కడ ఈ DCP జోన్ ఏర్పాటై 1982లో జరిగింది। అప్పుడు ఈ ఆఫీసు బషీర్బాగ్లో ప్రస్తుతం ఉన్న CP ఆఫీస్లో అప్పుడు ఉండేది। అప్పుడు అక్కడ CP ఆఫీస్ కడుతున్నందుకు దాన్ని గృహకల్పకి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది। గృహకల్పాన్ని తర్వాత అక్కడ సెంట్రల్ జోన్ DCP ఆఫీస్ ఏర్పాటు చేయడంతో ఈ జోన్ DCP ఆఫీస్ని అంబర్పేట్ లైన్స్ పోలీస్ లైన్స్కి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది। అప్పటి నుండి కూడా DCP ఈ జోన్కి సరైన ఆఫీస్ లేదు। అయితే ఇక్కడ ప్రభుత్వం శాంక్షన్ చేయడంతో ఈ DCP ఆఫీస్ గత 4-5 సంవత్సరాల నుండి దీన్ని వర్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని ఈరోజు దీన్ని ప్రారంభోత్సవం జరిగింది। ఇదే విధంగా మీరు అందరికీ తెలుసు శాంతి భద్రతలు మరియు క్రైమ్ కంట్రోల్ ఏదైతే ఉందో ముఖ్యమైన ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుంది। ఎప్పుడైతే శాంతి భద్రతలు ఉంటాయో ప్రజలకు మంచి రక్షణ, వారి ఆస్తులకు వాళ్ళ ప్రాణాలకు కల్పించినప్పుడు ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానివ్వండి, ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి అని పబ్లిక్ కి మంచి సేవలు అందించే పరిస్థితుల్లో సేఫ్టీ ఉన్నప్పుడు, మహిళల భద్రత గురించి మంచి ఆలోచనలు ఉన్నప్పుడు और बढ़ते हैं जद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने मुंबई के धरावी इलाके का दौरा किया, लेबर तबके और आम लोगों से बातचीत की, उनके मसाइल सुने। सिलसिले में कांग्रेस कायद ने मीडिया को बयान जारी करते हुए राहुल गांधी के दौरे के सिलसिले में तफसीलात बताई। आज राहुल जी का आगमन हो रहा है। राहुल जी आज जो लेबर वर्कर्स है उनको मिलने वाले हैं, उनके साथ में चर्चा करने वाले हैं, उनके फैमिली को मिलेंगे। उनमें बड़ा उत्साह है आज की राहुल जी आ रहे, क्योंकि ये तो पीढ़ियों से ये काम उनका ये बिजनेस काम चलते आ रहा है। उनकी ढेर सारी समस्या, उनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, ये किस तरह से उनको इस काम करते हुए जूझना पड़ता है, उनके क्या प्रॉब्लम्स है, इन सबको लेकर राहुल जी उनके साथ में उनको मिलने वाले हैं। और केवल उसी के लिए राहुल जी का आज का दौरा है। धारावी में वो जाएंगे और 2-3 घंटा उनके साथ में रूबरू होंगे। और मेरे ख्याल से विशेष रूप से उनको इस सब परिस्थिति में राहुल जी मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीढ़ियों से काम करते हुए भी उनको जो फाइनेंशियल ये होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, वो भी उस बारे में भी राहुल जी चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जो यहाँ पर लेदर इंडस्ट्री है धारावी के अंदर, उसको विजिट करने के लिए आए हैं। किस तरह से स्मॉल स्केल लेदर इंडस्ट्री चलती है, उनकी क्या दुख तकलीफ है, ये राहुल गांधी जी की जो एक श्रृंखला चली है, कूली को मिलना या फिर और वर्कर्स को मिलना, गिग वर्कर्स को मिलना, ये उस श्रृंखला का एक भाग है। वो जगह जगह पर पूरे देश में जाकर के जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी क्या तकलीफ है, उनके बिजनेस में क्या तकलीफ है, उनके कामकाज में क्या तकलीफ है, उसके ऊपर ये इस तरह के वो अपने काम करते आए हैं। उसी का ये एक
मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने गोल्ड स्कैम की मुलजिमा को 2 इख्तियार दिए हैं। सरमाकारों से वसूल करदा 25 करोड़ रुपए अंदरून 3 महीने वापस कर दे या फिर जेल जाए। हीरा गोल्ड की मैनेजिंग डायरेक्टर नौहरा शेख को कई लाख सरमाकारों को 5,600 करोड़ रुपए का धोखा देने के इल्ज़ाम का सामना है। उनके खिलाफ कई रियासतों में FIR भी दर्ज है। आज समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ED को हुक्म दिया कि अगर नौहरा शेख 90 दिनों में इन्वेस्टर्स यानी सरमाकारों से वसूल करदा रकम के हिस्से के तौर पर 90 दिनों में 25 करोड़ रुपए सरमायाकारों को वापस करने में नाकाम रहती हैं तो उन्हें तहवील में ले लिया जाए। अदालत ने कहा कि हम मुलजिमा को आखिरी मौका देते हुए तजवीज़ पेश कर रहे हैं कि वो 3 महीनों के अंदर ये रकम डिपॉजिट करवाएं। बसूरत दीगर उनकी ज़मानत खुद ब खुद मनसूख हो जाएगी और नौहरा शेख को जेल भेज दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी लीडर और रुकने पार्लिमान राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया और खुशी जाहिर की कि उन्हें दुनिया के बावकार तालीमी इदारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ग्लोबल लीडरशिप एंड पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया है। राघव चड्ढा ने अपने बयान में कहा कि हर उम्र में सीखते रहने का जज्बा सबको बेदार रखना चाहिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आप सबसे ये न्यूज़ शेयर करते हुए कि मुझे हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ने एक लीडरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया है। जैसा कि आप जानते हैं हार्वर्ड कैनेडी स्कूल इस दुनिया का सबसे प्रेस्टीजियस, सबसे बेहतरीन पब्लिक पॉलिसी स्कूल माना जाता है। यहाँ पर इस प्रोग्राम के लिए दुनिया भर से कुछ लोगों को हैंडपिक किया गया है जो अपनी अपनी फील्ड में, चाहे वो गवर्नेंस की फील्ड हो, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड हो, आर्ट एंड कल्चर से हो, उन्हें चुनकर यहाँ पर इस प्रोग्राम के लिए बॉस्टन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बुलाया जाता है। मुझे बताते हुए खुशी है कि मुझे इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया और यहाँ पर डिप्लोमेसी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी की तमाम तरीके की चीज़ों को पढ़ने का, सीखने का मौका मिलेगा। मुझे विश्वास है कि मैं ये सारी चीज़ों को एक पॉजिटिव तरीके से अपने काम में ढाल पाऊंगा। पढ़ने की, लिखने की, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और मुझे लगता है जब पढ़ाई करने का मौका मिले पढ़ाई करनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं आज से कुछ समय पहले मुझे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर YGL के तौर पे चुना था। इन YGLs में से ही कुछ लोगों को इस प्रोग्राम के लिए हैंडपिक किया जाता है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में निमंत्रण देकर उन्हें बुलाया जाता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे ये मौका मिला और इस सब स्किल सेट को, पढ़ाई को एक्वायर करने के बाद, सीखने के बाद मुझे विश्वास है कि मैं और मजबूती से आप सबके लिए काम कर पाऊंगा और एक पॉजिटिव चेंज ला पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी बैक एट स्कूल। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनी तंजीम हमास को आखिरी वार्निंग देते हुए कहा कि वह गाज़ा में मौजूद बाकी तमाम यरगमालियों को रिहा कर दे। ट्रंप ने एक बयान में हमास से खिताब में कहा कि तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा किया जाए और उन तमाम लोगों की लाशें भी वापस कर दी जाए जो मर चुके हैं। सदर ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि सिर्फ कमज़ोर और ज़हनी बीमार लोग लाशें रखते हैं। अपने बयान में ट्रंप ने यह भी कहा कि वो इसराइल को हर वो चीज़ भेज रहे हैं जो हमास को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है। सदर ट्रंप के बकौल अगर उनके कहे पर अमल नहीं किया गया तो हमास का कोई रुकन भी महफूज नहीं रहेगा। अमरीकी सदर ने यह बयान हमास की कैद से आज़ाद हुए 8 अफराद से व्हाइट हाउस में मुलाकात के मौके पर जारी किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। तेलंगाना काबीना का रेवंत रेड्डी की सदारत में हुआ इजलास, पसमानदा तबका तहफ़्फ़ुज़ात, असम्बली का खुसूसी सेशन और दीगर अमूर पर बातचीत। वारंगल, खम्मम, नलगोंडा से टीचर एमएलसी पर कामयाब उम्मीदवार श्रीपाल ने रेवंत रेड्डी से की मुलाकात, असातिज़ा के मसाइल हल करने का दिलाया यकीन। हम तेलंगाना में डबल इंजन सरकार लाने के लिए करेंगे काम, एमएलसी सीटों पर कामयाबी से पुरजोश बीजेपी लीडर किशन रेड्डी का दावा। तालीम, मुलाजिमत और मुकामी इदारों के इलेक्शन में पसमानदा तबकात BCs के लिए रिजर्वेशन बढ़ाने 3 मुख्तलिफ बिल लाए जाएं, रेवंत रेड्डी हुकूमत से BRS एमएलसी कविता ने किया मुतालबा। 90 दिनों के अंदर 25 करोड़ वापस करो या जेल जाओ, हीरा ग्रुप की नौहरा शेख को सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त अल्टीमेटम। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनी तंजीम हमास को दी आखिरी वार्निंग, कहा गजा में मौजूद बाकी तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाए वरना हमास के खात्मे के लिए इसराइल की हर मुमकिन करेंगे मदद। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज़।